Good afternoon, one and all. I would like to welcome you in this lecture of Engineering Graphics and CAD. And today we are going to start three-stage problems. Up till now, we have completed the problem in a two-stage. और यहाँ हम three-stage problem जो है वो solve करने वाले हैं. Three-stage problem यानी the plane inclined to both the reference plane. यानी कि आपका जो plane होता है वो plane, suppose my plane is like in this way, okay, it is parallel to HP and perpendicular to VP. If I will hold this particular plane in this way, it means this is the inclination with HP. ये HP के साथ इंक्लिनेशन हुआ है. और अगर मैं इस प्लेन को इस डायरेक्शन में या इस पिछली डायरेक्शन में ले जाता हूं तो आई कैन से दैट प्लेन इज इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस प्लेन. और ये जो प्लेन इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस प्लेन है उसका जो सॉल्यूशन है वो थ्री स्टेज में हमें मिलता है. अब तक हमने दो स्टेज ड्रॉ किए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द थर्ड स्टेज आल्सो. सो वन प्रॉब्लम आई हैव गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, you will have to write the heading three stage problem. Have you written it? Three stage problem. Three stage problem. In bracket you need to write a plane inclined to both HP and VP. And you will have to write down this particular problem. Plane inclined to both HP and VP, and you need to write this problem. A rectangle comma a rectangle comma a rectangle comma length of sides of 30 comma 50 mm has shortest side AB in HP in HP and inclined at 30 degree to VP.
to VP. Complete the projection of plane. Complete the projection of plane if surface of plane is inclined 45 degree to HP. 45 degree to HP. Have you written it, everybody? Have you written it? Sir. Boys, have you written it? Yes, sir. Okay. Now, first of all, ये 3 स्टेज प्रॉब्लम है. यहां आपने अगर देखा तो आपका जो प्लेन है वो इंक्लाइन टू वीपी भी है और इंक्लाइन टू एचपी भी है. 30 डिग्री टू वीपी है और 45 डिग्री टू एचपी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to write the given things. Given. What is the given? Number 1, a rectangle. (30 by 50). And it is written that shortest side in HP. यानी कि ये जो रेक्टेंगल है वो कहां रखा हुआ है? वो HP में रखा हुआ है. और किस साइड पे रखा हुआ है? तो उसके शॉर्टेस्ट साइड पे रखा हुआ है. ये बात सबको क्लियर हो गई? तो मुझे एक बात बताइए आप कि ये मेरी XY लाइन है. दिस इज माय X एंड दिस इज माय Y. तो मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट जो है आपका HP में रखा हुआ है. तो जब ऑब्जेक्ट आपका HP में रखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? XY लाइन के नीचे से या XY लाइन के ऊपर से? HP में रखा हुआ है. Can anybody tell me where I will have to solve this particular problem? Below XY line or above XY line? Below X. Below XY. Below XY line. Absolutely correct. And you tell me which part I will have to draw on this line. उन्होंने कहा है कि शॉर्टेस्ट साइड इन HP, यानी कि कौन सी साइड मुझे XY लाइन को परपेंडिकुलर करके लेनी है? AB. AB, yes, correct. But what will be the dimension of AB? 30. 30. Absolutely correct. Yes. क्योंकि 30 और 50 में छोटा कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है? 50 है, सॉरी 30 है. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जो पार्ट HP में रखा हुआ है यानी कि शॉर्टेस्ट साइड, वो शॉर्टेस्ट साइड यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा. ये हो गई शॉर्टेस्ट साइड. And I will have to draw the longest side of 50 mm in this way. Then once again 30 mm. And after that, this is also of 50 mm.
it must be perfect rectangle. And I will take the projector of it in upward direction. In this way. And I will have to provide the name and dimension to it. So this is my point A. This is my point B. This is my point C. And this is my point D. And I'll provide the dimension. So dimension line must be drawn here. I'll extend the projector of AD and VC, and I will mark arrow point on it. So this is one arrow. And this is another arrow. This is 50 mm. And here it is 30 mm. Now next step will be, क्या है next step? क्या होनी चाहिए next step? What must be the next step? यहां ड्रॉ किया है, अब ऊपर ड्रॉ करना है मुझे. So front view I need to draw. I will make this line dark. And I will write down here A dash, B dash, and this point will be C dash and D dash. तो ये फर्स्ट व्यू कंप्लीट हो गया. ओके, तो अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट एंगल हमने कहां ड्रॉ किया था. पहले के कुछ प्रॉब्लम आपके पास होंगे, तो मुझे अब इंक्लिनेशन कहां ड्रॉ करना है? ऊपर ड्रॉ करना है या नीचे ड्रॉ करना है? एंगल कहां ड्रॉ करना है मुझे? ऊपर. ऊपर ड्रॉ करना है. और ऊपर का एंगल जो होता है वो इंक्लिनेशन विथ एचपी होता है या वीपी होता है? HP. HP. एचपी. और प्रॉब्लम पढ़िए आप. पीपी दिया सर. Inclined at 30 degree to VP and complete the projection of plane if surface of plane is inclined of 45 degree to HP. आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है देखिए. पहले VP का एंगल दिया है और उसके बाद HP का एंगल दिया है. तो ये क्यों किया है उन्होंने? Why such kind of the information is given? It is provided just to confuse you people. बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था. क्या सॉल्यूशन बताया था? कि अगर पहले मैंने, ये मेरी XY लाइन है, सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन इज XY लाइन, तो यहां मुझे पहले मेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद फ्रंट व्यू लेना है, उसके बाद मुझे इस साइड में आना है. यानी कि मैंने यहां स्टार्ट किया, नीचे स्टार्ट किया XY लाइन के, मैं ऊपर आ गया, तो अब मुझे साइड में आना है, यानी कि मुझे इंक्लिनेशन विद एचपी चाहिए यहां. ये बात ध्यान में रखिए. अगर प्रॉब्लम आप नीचे स्टार्ट करते हो तो पहले आपको क्या लेना है? एचपी का इंक्लिनेशन लेना है. और अगर आप प्रॉब्लम ऊपर स्टार्ट करते हो तो आपको पहले वीपी का एंगल लेना है और उसके बाद एचपी का एंगल लेना है. 3 स्टेज प्रॉब्लम है. सो राइट डाउन द note if object
is in HP, if object is in HP, then if object is in HP, then number 1, draw its true shape, draw its true shape below XY line, draw its true shape below XY line, in bracket, in top view, and its line view, and its line view, and its line view must be drawn, above XY, on XY line, or above XY line, on XY line or above XY line. above XY line के सामने ब्रैकेट में लिखिए, above XY line के सामने ब्रैकेट में लिखिए, if such condition is given, if such condition is given. Number 2, draw inclination with HP first. Draw inclination with HP first. And number 3, in stage 3, draw inclination with VP. Draw inclination with VP. Draw inclination with VP. Draw inclination with VP. त्यानंतर दुसरी नोट लिहा, उसके बाद दूसरी नोट लिख लीजिए. If object is in VP, if object is in VP, then draw its true shape, draw its true shape above XY line, above XY line, above XY line, in bracket, in front view, and draw line view, and draw line view
on XY line, on XY line or below XY line, or below XY line, or below XY line. बिलो XY लाइन के सामने ब्रैकेट में लिख दीजिए if such condition is given, if such condition is given, if such condition is given, bracket complete. Then point number 2, point number 2, draw the inclination with VP first. Draw the inclination with VP first. Draw inclination with VP first. And below that write down, then draw inclination with VP. Sorry, HP. Third point, then draw inclination with HP. Then draw inclination with HP. तो यहां एक सॉल्यूशन है, ओके। तो सॉल्यूशन कैसा है ये एक बार देख लीजिए और कहीं तो ड्रॉ करके लीजिए कि सपोज दिस इज द XY लाइन और अगर आपका प्रॉब्लम HP में है तो कैसे होगा, पहले आप नीचे ड्रॉ करेंगे, फिर ऊपर ड्रॉ करेंगे यानी कि XY लाइन पे, फिर ऊपर इंक्लिनेशन विथ HP लेंगे, उसका व्यू नीचे कंप्लीट करेंगे, फिर इंक्लिनेशन विथ VP ड्रॉ करेंगे और उसका व्यू ऊपर कंप्लीट करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट VP में है तो पहले आप ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर XY लाइन पे उसका लाइन व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर इंक्लिनेशन विथ VP लेंगे, उसको ऊपर कंप्लीट करेंगे, फिर इंक्लिनेशन विथ HP लेंगे और उसे नीचे कंप्लीट करेंगे। तो जो सीक्वेंस है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ड्रॉ करने का, वो सीक्वेंस इस तरह है जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दी है। और मुझे बता सकते हैं क्या कि वो डायग्राम कौन से इंग्लिश लेटर जैसी दिखती है? सबको दिखाई दे रही है? कौन से इंग्लिश लेटर जैसे दिखती है ये डायग्राम? यस एस। एस सो ये जो एस है वो हमेशा जब भी प्लेन का चैप्टर सामने आएगा, सॉलिड का चैप्टर सामने आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे आएगा, एस शेप्ड सॉल्यूशन आएगा। कैसे सॉल्यूशन आएगा? एस शेप्ड सॉल्यूशन आएगा। कहां तो आप ड्रॉ करके रख दो। अब ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये पहले एस जैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पहला एस है, ये प्रॉब्लम हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा क्योंकि हमने प्रॉब्लम नीचे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे ऊपर का एंगल चाहिए और ऊपर का एंगल यानी इंक्लिनेशन विथ HP होता है। 2 स्टेज प्रॉब्लम हमने बहुत से सॉल्व किए हैं ऐसे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क first point over here and I will immediately name that point as A dash B dash। और मैं क्या करूंगा, यहां 45 डिग्री की एक फेंट लाइन बना दूंगा। ये एंगल होगा 45 का, थीटा
विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इस एंगल पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, CD ड्रॉ कर दूंगा। कंपास में मैं A डैश B डैश टू C डैश D डैश इतना डिस्टेंस लूंगा और A डैश B डैश के पॉइंट पे रख के मैं यहां C डैश D डैश बना दूंगा। I'll name it this particular point as a C dash D dash। ये टू स्टेज का प्रॉब्लम आपको तो पता है, सबने ड्रॉ किया है, अब तक बहुत बार ड्रॉ किया है। टू स्टेज के 6-7 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो ए के प्रोजेक्टर हैं वो नीचे लूंगा, ए बी के, सी डी के प्रोजेक्टर नीचे लूंगा, ये एडी के प्रोजेक्टर लूंगा, और ये बीसी के प्रोजेक्टर लूंगा। तो थोड़ा जरा स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। एंड आई विल ड्रॉ दिस टॉप व्यू। ये जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू मैं डार्क कर देता हूं। and I will name it A, B, C, D। तो ये टू स्टेज का प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। पहले उन्होंने प्रॉब्लम में ये बात ध्यान में रखी है या रखिए कि इंक्लिनेशन विथ वीपी पहले दिया है और इंक्लिनेशन विथ एचपी बाद में दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसलिए गिवन थिंग्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंक्लिनेशन विथ वीपी खत्म हो गया, यानी कि यहां से मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, फिर सॉरी हाँ करेक्ट, यहां का पहला इंक्लिनेशन ड्रॉ कर दिया, नीचे का व्यू ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस साइड जाना है, यानी कि नीचे का एंगल लेना है। और नीचे का एंगल यानी इंक्लिनेशन विथ वीपी, XY लाइन के नीचे हमेशा फाई रहता है, XY लाइन के ऊपर हमेशा थीटा रहता है। तो मुझे अब क्या करना है, फाई का एंगल ड्रॉ करना है। फाई कितना है दोस्तों? 30। Absolutely right, it is 30. So what I will do, I will draw first of all faint line of 30 degree. Faint line of 30 degree I have drawn in this way. And I will give y is equal to 30 degree. ओके, सबने ड्रॉ कर दिया? Have you drawn it? Yes, sir. Okay. Now what we will have to do, अब हमें क्या करना है? Go to the problem once again.
और प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। अ रेक्टेंगल यानी कि आपका जो दिया हुआ रेक्टेंगल है जो 30-50 mm साइड का है, 30-50 mm साइड का है, उसकी शॉर्टेस्ट साइड ए बी एचपी में है, तो ये हमने यहां ड्रॉ कर दी है, एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री टू वीपी, एंड इंक्लाइंड, क्या इंक्लाइंड है? एंड इंक्लाइंड द शॉर्टेस्ट साइड इन ए बी इन एचपी एंड इंक्लाइंड, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड आपकी जो है वो एचपी में है और वो वीपी को इंक्लाइंड है। मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। यहां प्रॉब्लम में दिया है रेक्टेंगल लेंथ ऑफ साइड 30-50 mm हैज शॉर्टेस्ट साइड ए बी इन एचपी। शॉर्टेस्ट साइड कैसी है? एचपी में है और इंक्लाइंड टू वीपी है, यानी कि कौन सी साइड इंक्लाइंड टू वीपी है? ए बी। ए बी साइड विच इज शॉर्टेस्ट वन। तो मैं क्या करूंगा, यहां थोड़ा सा एक अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहां इस लाइन पे आपको ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। रिकंस्ट्रक्ट करना यानी ड्रॉ करना, ओके। और वो कैसे ड्रॉ करना है? वो प्रोजेक्टर और लोकस का सहारा लेके ड्रॉ करना है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, केयरफुली जरा देखिए। पहले मैं एक पॉइंट सेट करके लेता हूं। I'll set a point। यहां मैं ये पॉइंट सेट करता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? ए पॉइंट। और मैं क्या करता हूं कि ए बी इतना डिस्टेंस कंपास में लेता हूं। ए बी इतना डिस्टेंस यानी 30 mm, और मैं ये जो डिस्टेंस है ये यहां मार्क कर देता हूं। दिस विल बी माय पॉइंट बी। ये मेरा पॉइंट हो गया बी 30 mm के लाइन पे। ये लाइन जोड़ देता हूं मैं, डार्क कर देता हूं इस लाइन को। और मैं अब क्या कर देता हूं, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं इससे प्रोजेक्टर्स। यहां से मैं क्या कर देता हूं, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो ए के सामने कौन सा पॉइंट है? ए के सामने कौन सा पॉइंट है? ये देखिए जरा, डी पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूं, अब एडी इतना डिस्टेंस कंपास में लेता हूं और यहां मार्क कर देता हूं। और सेम डिस्टेंस बीसी का है तो बी पॉइंट पे ये रख देता हूं और यहां मार्क कर देता हूं। दिस विल बी माय पॉइंट डी एंड दिस विल बी माय पॉइंट सी। ए बी सी डी चारों पॉइंट मिल गए। मैं अब इसको डार्क कर लेता हूं। ये ए टू डी डार्क कर लिया पहले। फिर बी टू सी डार्क कर लिया मैंने और फिर डी टू सी जोड़ दिया।
यानी सेम फिगर मैंने रिकंस्ट्रक्ट कर दी, फिर से बना दी। रिकंस्ट्रक्ट करना मीन्स फिर से बनाना। ओके, यहां की जो फिगर है वो यहां की फिगर सेम यहां बना दी मैंने, लेकिन 30 डिग्री लाइन पे शॉर्टेस्ट लेंथ रखते हुए। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? सबने ये फिगर बना दी? Yes, sir. बॉयज? Yes, sir. Yeah. Now, simply, what you will have to do, you will have to take projector of A का प्रोजेक्टर मैं ऊपर लेता हूं, बी का प्रोजेक्टर मैं ऊपर लेता हूं, डी का प्रोजेक्टर मैं ऊपर लेता हूं, और सी का प्रोजेक्टर मैं ऊपर लेता हूं, और यहां सी डैश डी डैश का एक लोकस ड्रॉ कर देता हूं। और ए बी ये पॉइंट एक्स वाई लाइन पे ही है, तो ये जो एक्स वाई लाइन है यही ए बी की लोकस हो गई। तो अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट सेट करता हूं। पहला पॉइंट ए का प्रोजेक्टर और ए का लोकस, यानी कि ये आ गया मेरा ए पॉइंट। देखिए, ए का प्रोजेक्टर और ए का लोकस, तो दिस विल बी माय ए पॉइंट। ये बी का प्रोजेक्टर और बी का लोकस यानी एक्स वाई लाइन, ये दोनों पॉइंट एक्स वाई लाइन पे ही आएंगे। दिस इज माय प्रोजेक्टर ऑफ बी, पॉइंट ऑफ बी। सी का प्रोजेक्टर, सी का लोकस, सो दिस इज माय पॉइंट सी। और डी का प्रोजेक्टर और डी का लोकस, दिस इज माय पॉइंट डी। ओके, आई विल नेम दोज पॉइंट्स। A dash, this point is B dash, this point is C dash, and this last point is D dash. अब मुझे क्या करना है, ये चारों पॉइंट जोड़ने हैं। A to B, B to C, C to D और D to A, and this is my final solution। ये मेरा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। जब मेरा प्लेन EHP को इंक्लाइनड होगा, VP को इंक्लाइनड होगा, तो ये 3 स्टेज सॉल्यूशन आएगा। 3 स्टेज में क्या करना है, एस शेप याद में रखना है। ये देखिए, मैंने नीचे डायग्राम स्टार्ट कर दी, फिर ऊपर का व्यू निकाल दिया, यानी ये फर्स्ट स्टेज हो गई। फिर ऊपर का एंगल निकाल दिया, नीचे की डायग्राम कंप्लीट कर दी, ये मेरी सेकंड स्टेज हो गई। फिर नीचे का एंगल ड्रॉ कर दिया, उस पे ये सेकंड वाली फिगर यहां क्या कर दी, मैंने रीड्रॉ कर दी। यहां की फिगर मैंने क्या की, यहां इस एंगल पे रीड्रॉ कर दी और ऊपर ले ली, तो मेरा थर्ड स्टेज में सॉल्यूशन ऊपर कंप्लीट हो गया। यानी कि 3 स्टेज प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो उसका एंड ऊपर होता है, और अगर आप ये प्रॉब्लम ऊपर स्टार्ट करोगे तो इसका जो एंड होगा वो नीचे होगा। ओके, तो ये थर्ड स्टेज है। इस तरह के प्रॉब्लम पहले एग्जाम को पूछे गए थे,
ऑफलाइन एग्जाम में जब 100 मार्क का पेपर था तो इसका वेटेज 13 मार्क का था। एक प्रॉब्लम 13 मार्क को आता था, और जैसे ही 70 मार्क्स का पेपर हो गया तो इसका वेटेज 6 से 7 मार्क हो गया, 6 to 7 मार्क्स। ओके, तो आपके थर्ड व्यू को में भी 3 मार्क्स और रिमेनिंग 2 स्टेज को 2 मार्क्स। ऐसे इस स्टेप वाइज मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहता है। तो 3 स्टेज प्रॉब्लम में कंफ्यूज मत हुई है, पहली बात। सेकंड बात, मैंने जो आपको नोट दिए हैं वो नोट ध्यान में रखिए। प्रॉब्लम अगर नीचे से स्टार्ट किया है तो इंक्लिनेशन विथ एचपी फर्स्ट आएगा, इंक्लिनेशन विथ वीपी नेक्स्ट आएगा। अगर मैं आपने प्रॉब्लम ऊपर स्टार्ट किया है तो इंक्लिनेशन विथ वीपी फर्स्ट आएगा, इंक्लिनेशन विथ एचपी बाद में आएगा। इंक्लिनेशन विथ एचपी हमेशा अबव एक्स वाई लाइन होता है और इंक्लिनेशन विथ वीपी हमेशा बिलो एक्स वाई लाइन होता है। इंक्लिनेशन विथ एचपी यानी थीटा होता है और इंक्लिनेशन विथ वीपी फाई होता है। थीटा ऑलवेज अबव एक्स वाई लाइन, फाई ऑलवेज बिलो एक्स वाई लाइन। This particular thing I have repeated almost 100 times in the lines, and again I am repeating in the planes because things are not going to change. So this is the proper solution to our diagram of 3-stage problem. Have you drawn it, everybody? Yes, sir. Yes, if you have not drawn it, I will provide you time of 2 to 3 minutes to complete this. This is very a rectangle. A rectangle of 30 by 50 mm, of 30 by 50 mm has its shortest side, its shortest side is in VP, is in VP. Is in VP. And inclined 30 degree to HP, 30 degree to HP. Complete the projection of plane. Complete the projection of plane complete the projection of plane if the surface of plane inclined at 45 degree, inclined at 45 degree to
VP, 45 degree to VP. Now read the problem carefully and tell me the things fast. पहले ये बताइए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है गिवन में. आंसर मी फास्ट. डायग्राम कौन सी है, कौन सी है फिगर आपकी, फिगर का शेप कैसा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. HP में रखा है या VP में रखा है, VP, VP में रखा है. VP में क्या रखा है, शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड हमें क्या करके लेनी पड़ेगी, perpendicular, परपेंडिकुलर करके लेनी पड़ेगी. सो आई विल परपेंडिकुलर इट. ये लिए परपेंडिकुलर करके. अब मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. सो आई विल ड्रॉ 50 mm लाइन. and I will complete this diagram. मैं यहां से एक प्रोजेक्टर निकाल देता हूं. थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है मेरा डायग्राम, बट कंसंट्रेट. यू कैन ड्रॉ इट इन वेरी वेरी लेस टाइम. तो ऊपर आपने स्टार्ट कर दी है. ओके, यहाँ का जो व्यू आएगा उसका टॉप व्यू, पहले ऊपर की डायग्राम ड्रॉ कर दी, फिर नीचे की लाइन ड्रॉ कर दी. अब मैं उसे नाम देता हूं ए डैश, बी डैश. अब नाम चेंज हो गए थोड़े, सी डैश, डी डैश. अब आपको लगेगा कि ए भी परपेंडिकुलर नहीं है तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया. ऐसी कुछ बात नहीं है, नाम हम देने वाले हैं. तो वो साइड AB भी हो सकती है, BC भी हो सकती है, CD भी हो सकती है, या AC भी हो सकती है. लेकिन जो भी कुछ छोटी लाइन हो, ओके, वो छोटी लाइन सिर्फ XY लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वट एवर विल बी द नेम. तो यहाँ AD लाइन जो है वो मेरी शॉर्टेस्ट लेंथ है. ओके, तो मैं वैसे ही नाम दे देता हूं नीचे भी, A, D और यहां B, C. इसके डायमेंशन अब मैं नहीं लिखूंगा इधर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें. अब मुझे बताइए कि S शेप की जो फिगर है, मैंने आपको पढ़ाया था S शेप. यहां अगर प्रॉब्लम ऊपर स्टार्ट करते हो तो फिर नीचे आना है, फिर आपको नीचे का इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है. नाउ यू कैन टेल मी, नीचे का इंक्लिनेशन यानी इंक्लिनेशन विथ VP होता है या HP होता है, VP, VP होता है. What is inclination with VP is given 45 given. Okay, so I will draw a line of 45 degree here, but नीचे, ऊपर नहीं. और क्यों नीचे ड्रॉ की है मैंने, कैन एनीबॉडी आंसर इट. अभी मैंने बताया था. अब यहां इस डायग्राम में मैंने नीचे का एंगल पहले क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग इन VP, तो पहले नीचे का एंगल आएगा. नोट मैंने जो दी है उसके अनुसार. अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं ऊपर लूंगा और AD
से BC इतना डिस्टेंस लेके, बिकॉज दिस पॉइंट इज माय पॉइंट AD, ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट हो गया AD पॉइंट। तो मैं यहां AD टू BC इतना डिस्टेंस लूंगा और क्या करूंगा, यहां कट करूंगा। और ये पॉइंट जोड़ दूंगा, डार्क कर दूंगा इसे, एंड आई नेम इट एज दिस पॉइंट इज अ BC। अब 2 स्टेज की प्रॉब्लम आपने कंप्लीट किया है ऐसे। तो BC क्या करना है, मुझे ऊपर लेना है, और अब क्या करूंगा मैं, बताइए जल्दी। 2 स्टेज प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना होगा, प्रोजेक्टर नॉट लोकस, दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज अ लोकस। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर तैयार। मैं इसे डार्क कर दूंगा, और मैं यहां नाम लिख दूंगा इसके, दिस पॉइंट इज A dash, this point is D dash, ये जो पॉइंट है वो होगा C डैश, और ये जो पॉइंट है वो होगा मेरा B डैश। अब थर्ड स्टेज में मुझे क्या करना है, इंक्लिनेशन विथ HP ड्रॉ करना है या VP ड्रॉ करना है। देखिए यहां प्रॉब्लम स्टार्ट किया, यहां आ गया, फिर मैंने इंक्लिनेशन पे ऊपर गया, उसके बाद मुझे यहाँ का ऊपर का इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है। तो इंक्लिनेशन विथ HP में ड्रॉ करता हूं। कितना है ये, 30। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 30 डिग्री का इंक्लिनेशन ड्रॉ करूंगा। ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया, और मैं अब इस पे क्या करूंगा, ये ABCD कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो जो शॉर्टेस्ट साइड AD है वो मैं AD यहाँ पे लगा दूंगा, ये मत भूलना है आपको। शॉर्टेस्ट साइड है, तो शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, AD है। तो मैं पहले क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ AD लाइन। यहां मैं क्या करूंगा, AD लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां मैं लूंगा A पॉइंट, और यहां से मैंने D पॉइंट ले लिया। उसके बाद मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा। एक प्रोजेक्टर ऊपर गया, ये दूसरा प्रोजेक्टर ऊपर गया। मैं यहां नाम दे दूंगा, दिस पॉइंट इज माय पॉइंट A डैश, दिस पॉइंट इज माय B डैश, नॉट B डैश, दिस इज D डैश, so दिस इज D डैश। उसके बाद मैं डिस्टेंस मार्क करूंगा AB और CD की। AB और CD की डिस्टेंस मैं उस पर मार्क करके एक लाइन बना दूंगा, दिस इज A टू B, यहां से यहां और यहां से ये D पॉइंट। दिस पॉइंट इज माय पॉइंट B डैश, एंड दिस पॉइंट इज माय पॉइंट C डैश। तो ये सारे जो पॉइंट है मैं क्या करूंगा, नीचे ड्रैग करूंगा। I have dragged this B point, I have dragged this A point, this D point and C point। और मुझे क्या करना है, B और C जो है वो यहां लेना है। A और D ऑलरेडी XY लाइन पे है, तो मैं अब क्या करूंगा, पॉइंट यहां ले लूंगा। यहां A का प्रोजेक्टर है,
और A का लोकस है, सो दिस इज माय पॉइंट A. Then D point, this is my projector of D, this is locus of D, so this is a D. यहां आ गया मेरा C का प्रोजेक्टर और C का लोकस C, और यहां आ गया B का लोकस और B का प्रोजेक्टर B. अब मैं क्या करूंगा, ये ABCD चारों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को जोड़ूंगा, A to B, B to C, C to D और D to A. देखिए पहले जैसे ही सॉल्यूशन बन गया, लेकिन कहां बन गया, XY लाइन के नीचे बन गया. यानी कि हमने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था XY लाइन के ऊपर जब VP में आपका ऑब्जेक्ट था, और उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया XY लाइन के नीचे. सेम मेथोडोलॉजी, देयर इज नो एनी चेंज. एंड नाउ यू विल फील दैट कि सेकंड स्टेज तक तो ड्रॉ करना आप सीख गए हैं, तो थर्ड स्टेज में हमें सिर्फ क्या करना है, डायग्राम को रीड्रॉ करना है और उसके प्रोजेक्शन नेक्स्ट व्यू में लेने हैं. अगर नीचे आपने डायग्राम को रीड्रॉ किया है तो आपको ऊपर उसके पॉइंट्स लेने हैं, और अगर ऊपर आपने डायग्राम को रीड्रॉ किया है तो आपको नीचे इसके पॉइंट्स लेने हैं. तो ये सिर्फ फर्स्ट प्रॉब्लम था. स्टिल वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम इन फ्यूचर, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एंड होप यू विल एंजॉय दिस प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन very much, because this is quite interesting problems, lengthy problems, and each and every stage is dependent on the previous stage. अगर पहली स्टेज आपने करेक्ट ड्रॉ की है तो सेकंड स्टेज आपकी करेक्ट आएगी, सेकंड स्टेज आपने करेक्ट ड्रॉ की है तो थर्ड स्टेज आपकी करेक्ट आएगी, और थर्ड स्टेज भी आपकी करेक्ट आ गई तो प्रॉब्लम आपका करेक्ट सॉल्व हो जाएगा. अगर फर्स्ट स्टेज आपने करेक्ट ड्रॉ की है लेकिन सेकंड स्टेज में कुछ मिस्टेक की है, तो आपकी फर्स्ट स्टेज के जो मार्क्स हैं वो यूजुअली ऑफलाइन एग्जाम में आपको देते हैं. और अगर आपने दोनों स्टेज करेक्ट ड्रॉ कर दिया लेकिन थर्ड स्टेज में कोई मिस्टेक की है तो दो स्टेज के मार्क्स आपको मिल सकते हैं. इसका मतलब है कि हमने पहले ये सीखा था कि विच आर द प्लेन्स, यानी कि फर्स्ट स्टेज हमने कंप्लीट कर दिया था. सेकंड स्टेज में सेकंड स्टेज के प्रॉब्लम हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो 2 स्टेज तक आपको परफेक्ट होना ही चाहिए. और थर्ड स्टेज में क्या करना है, सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ द डायग्राम ऑन योर लाइन एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व इट. एक बात याद रखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके जो 3 स्टेज के प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत इजी होते हैं. पेंटागन का भी ऐसा एक प्रॉब्लम होता है, वो भी इजी होता है. लेकिन हेक्सागन में और सर्कल में, हेक्सागन में 6 पॉइंट हम लेते हैं और सर्कल का प्रॉब्लम भी हमने कल सॉल्व किया था जिसमें हमने 8 प्रॉब्लम लिए थे. तो पॉइंट ज्यादा होने की वजह से वहां जब हम प्रॉब्लम ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत 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 सावधानी बरतनी जरूरी है. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व पेंटागन, हेक्सागन एंड सर्कल प्रॉब्लम इन फ्यूचर डेफिनेटली. ओके, तो आप मेरे साथ रहिए, प्रॉब्लम ड्रॉ करते रहिए, होमवर्क कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहिए. कुछ नहीं समझा तो वीडियो रेफर करते जाइए. अगर वीडियो में कुछ नहीं समझा तो वो बात मुझसे पूछिए, सिर्फ अकेले ही मत पूछिए, वो बात मुझे सबके सामने आप पूछ सकते हैं, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइस मैनर. बिकॉज सॉलिड भी ऐसा ही है, सॉलिड में भी 3 स्टेज प्रॉब्लम है. तो 3 स्टेज प्रॉब्लम अगर समझना हो तो खुद को तीसरी स्टेज रीड्रॉ करनी पड़ती है. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टुडे यू विल हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट प्रॉब्लम एंड यू विल हैव टू सॉल्व दिस सेकंड प्रॉब्लम आल्सो. तो 2 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आज आप कीजिए. सो आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. एंजॉय द इवनिंग. बाय बाय.